Assalamualaikum class. Today we are going to start our next topic, that is leftmost and rightmost derivations. So in leftmost and rightmost derivations, first of all we will look what is this. Leftmost non-terminal in the working string is the first non-terminal that we encounter when we scan the strings from left to right. So whenever we have certain strings, we are going to scan it either from left to right or right to left. Let's say I have a string like it is A B C. So I'm going to scan it from either this side in this direction, that is left to right direction, or in this direction, that is right to left direction. Alright, so we are going to scan our strings in either way, left to right or right to left. So they are saying that when we scan from left to right, so the first non-terminal we encounter, what we do, we just simply replace it. अब जब भी हमारे पास स्ट्रिंग्स को हम रीड करते हैं तो हमने नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करवाना होता है, तभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज बनती हैं ना. लेट्स से दिस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्ट्रिंग. इफ आई रीड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो आई एम रीडिंग इट बी बी ए बी. सो नाउ हियर एक्स इज द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल आई एम इनकाउंटरिंग. Then this is next and this is the last one. और अगर मैं राइट साइड से रीड करूं तो y is the rightest most नॉन टर्मिनल. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हम लोग जब रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वट एवर टर्मिनल कम्स वी चेंज इट. जब भी नॉन टर्मिनल जो हमारे पास सबसे पहला आता है, हम उसको रिप्लेस करवाते हैं टर्मिनल से, और हम इस तरह पूरी डेरिवेशन करते रहते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं इफ अ वर्ड W इज जनरेटेड बाय अ CFG बाय अ सर्टेन डेरिवेशन एंड एट ईच स्टेप इन द डेरिवेशन अ रूल ऑफ प्रोडक्शन इज अप्लाइड टू द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल in the working string, then this derivation is called leftmost derivation. Practically, when we replace the leftmost variable first in the string, then resulting derivation is called leftmost derivation. Similarly, replacing the rightmost variable first, that gives at every step gives us the rightmost derivation. अब यहाँ पे हम इसकी एक small सी example देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि when we are talking about leftmost derivation. Alright, first of all we are talking about leftmost derivation. So when we have the leftmost derivation, let's say कि मेरे पास एक production string है, it says A X B Y C Z. Now you can see I have X, Y and Z as non-terminals. ये मेरे पास सारे क्या हैं, non-terminals हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, variables कहते हैं, और इन variables को हम change करवाते हैं terminals के साथ. Let's say that X makes a terminal that is M, Y makes a terminal that is N, and Z makes a terminal, alright, Z makes a terminal that is L. Okay, I know these. Now I have to replace them. So if I am talking about the leftmost derivation, what I am going to do is कि सबसे पहले जब मैं रन करूंगी अपनी स्ट्रिंग को, तो सबसे पहला लेफ्टमोस्ट टर्मिनल है मेरे पास x, तो x को मैं रिप्लेस करवा दूंगी m से. देन आई हैव b y c and z. देन आई अगेन रीड माई स्ट्रिंग, these will be same. Now I have leftmost terminal as y, so I will replace the y and then c and then z. And then in my last run, now my only terminal or the leftmost terminal, जो भी आप कहें, that is z, so I will replace it and this is my leftmost derivation. Let's say that I have rightmost derivation on this side. तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे rightmost derivation हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, I will just write it like A X B Y C, and first of all I will replace the Z with L. Then in next derivation I will replace the Y with N, and in last derivation I will replace the X with M. That is my rightmost derivation. So I hope you understand what is rightmost and what is leftmost derivations. Alright, so now we will see an example. Now this is a very good
एग्जाम्पल, द लेंथी वन एज वेल। इतनी भी लेंथी नहीं है, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस को सॉल्व किया। ठीक है जी, तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वी हैव प्रोडक्शन रूल्स, दीज आर माय 2 प्रोडक्शन रूल्स and I have this specific string, so a string is already given to me कि ये आपके पास string है, आपने इसकी लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट आपने क्या करनी है, प्रोडक्शन जिसकी करनी है या डेरिवेशन करनी है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रही है। अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पे, ज़रा मैंने इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लिया ताकि आपको सही तरह समझ आए। अब अगर हम इधर यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारे पास जनाब BA से। अब हमारे पास जो S है उसकी 2 डेरिवेशंस हैं सर्टन, ऑलराइट, वी हैव 2 डेरिवेशंस, वन इज BAXAS, अदर इज AB, यानी हमारे पास इसके 2 अल्टरनेटिव्स हैं। हमें पता है कि ये लाइन अगर लगी है तो इसका मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेटिव्स इसके हम चला सकते हैं, लेकिन हम AB वाला अल्टरनेटिव नहीं चलाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है BA से, ये इससे हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ऑलराइट। तो जब हमारी स्ट्रिंग BA से स्टार्ट हो रही है तो हम ये वाली डेरिवेशन चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा S BAXAS। अब हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं X एंड S। So first of all we will replace the X। अब इस X को जब मैं रिप्लेस करूंगी तो इस X की जगह क्या आएगा, XAB। First of all I will replace it with XAB, not with double A। We have 2 alternatives again। If I replace it with double A, let's say अगर मैं इसे double A से रिप्लेस करवा देती हूँ यहाँ पे, तो आएगा मेरे पास B A double A फिर A और फिर S। अब आपकी ये डेरिवेशन बन गई, आपके पास 4 ये आ गए। अब इस S को जब आप रिप्लेस करवाएंगे इससे या इससे, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको इसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने यही स्ट्रिंग दोबारा लिख दी, देखें, और बाकी दोनों स्ट्रिंग एज इट इज हैं BAAS, और दरमियान में जहां X था वहां हमने XAB लिख दिया, ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने अब फिर से X को रिप्लेस करवाना है। अब हमने इस X को रिप्लेस करवाना है दोबारा से XAB से। ये देखिए हमने फिर रिप्लेस करवा दिया, और जो हमारी रिजल्टिंग स्ट्रिंग्स थी ABA ABAS और स्टार्ट वाली BA एज इट इज लिखी हुई है। अब जब आप यहां तक पहुंच गए तो आपको पता चल गया कि BA के दरमियान हमारे पास 2 B's जो हैं वो कम है। देखें BA AB, इसके दरमियान हमारे पास 2 A's कम है। तो इन 2 A's को हम क्या करते हैं, हमने इसको रिप्लेस करवा दिया। अब X को हमने 2 A's से रिप्लेस करवा दिया और बाकी सारी स्ट्रिंग को एज इट इज लिख दिया। एंड फाइनली क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में कर रहे थे, हमने लेफ्ट मोस्ट के लिए हमने लेफ्ट टर्मिनल को इधर 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 चेंज करवाया, और अब हम राइट जो है वो नॉन टर्मिनल उसको चेंज करवाएंगे और उसकी जगह हम A भी लिखेंगे। तो आपके पास एज इट इज स्ट्रिंग आगे जो आपको रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम इसी चीज को राइट मोस्ट डेरिवेशन करें तो उसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह होगी, हम इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन करके देखते हैं यहीं पे, तो आपको शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम यहाँ पे इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास वैल्यू है हमारे पास, हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की राइट मोस्ट डेरिवेशन करने लगे हैं। तो वैल्यू वाज BAX AS या फिर AB, एंड X इज एक्चुअली मेकिंग XAB और डबल A, और ये डबल A बना रहा है। अब अगर हम इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन करें तो हमने राइट मोस्ट स्ट्रिंग को सबसे पहले चेंज करवाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़ तो हम यही वाली स्ट्रिंग करेंगे, दूसरी स्ट्रिंग हम यूज़ ही नहीं कर सकते। ये हमने स्ट्रिंग यूज़ की, सबसे पहले हम राइट को चेंज करवाएंगे। अब हम राइट को चेंज करवाएंगे तो राइट की एक अल्टरनेटिव तो ये है जो हम यूज़ करें, और दूसरी अल्टरनेटिव ये है। तो क्योंकि हमारी एंडिंग इस पे हो रही है तो हम इसी अल्टरनेटिव से इसको चेंज करवाएंगे और S की जगह लिख देंगे AB,
राइट वाले को चेंज करवा दिया, अब राइट पे या लेफ्ट पे कोई चीज़ ही नहीं बची, अब हमारे पास एक ही टर्मिनल बच गया। तो अब जब हम राइट साइड से रीड करेंगे तो सबसे पहला टर्मिनल हमारे पास x ही आएगा। अब हम इस x को रिप्लेस करवाएंगे तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, b एज इट इज़ आगे, x की जगह आ जाएगा XAB, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं XAB, ये सब चीज़ें एज इट इज़ आ गई। ऑलराइट, अब उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास अभी भी हम स्ट्रिंग से काफ़ी दूर हैं, तो हम फिर से दोबारा इसको रिप्लेस करवाते हैं। BA एज इट इज़ लिखा, X की जगह मैंने लिखा XAB, और ये सारी स्ट्रिंग दोबारा AB AA B। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाली सारी स्ट्रिंग और ये वाली सारी स्ट्रिंग सेम है, सिर्फ दरमियान में x जो है वो चेंज है। तो अब हम उसको AA से रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बन जाएगी। ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है जो हमने अब राइट मोस्ट डेरिवेशन से बना ली है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गो, द थिंग्स वर्क। कि आप किस तरह ये देखें, ये हमने अब इसके बाद राइट मोस्ट डेरिवेशन की और उससे भी हमने स्ट्रिंग्स बना ली। इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें इन्होंने कंसीडर करवाया हुआ हमारे पास, कि आप यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए हुए हैं जी, कि S मेक्स स्मॉल a और b, ठीक हो गया, स्मॉल a b एंड स्मॉल b a। नाउ कैपिटल्स आर ऑलवेज नॉन टर्मिनल, तो ये बात हमें याद रखनी है कि कैपिटल्स आर ऑलवेज नॉन टर्मिनल। सो दिस कैपिटल मेक्स a as b double a and b makes b as a double b। ऑलराइट, सो दीज आर द प्रोडक्शंस, और हमारे पास हमने बनाना है डबल a डबल b a डबल b a, ये हमने प्रोडक्शन करनी है। अब क्योंकि हमने F से स्टार्ट करनी है प्रोडक्शंस करना, तो हमें एक बात पता चल गई कि ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है A से, तो इसका मतलब मैं ये वाला अल्टरनेटिव यूज़ करूँगी। जब मैं ये वाला अल्टरनेटिव यूज़ करूँगी तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये अल्टरनेटिव, ठीक हो गया। अब A आ गया, अब इस B को मैं किस किस चीज़ से रिप्लेस करवा सकती हूँ, B से, BS से और A डबल B से। लेकिन क्योंकि मेरे पास दोबारा एक A है तो मैं कहूँगी कि जी मैं ये वाला अल्टरनेटिव पिक करती हूँ, और मैंने क्या किया, डबल A, क्योंकि A इस B की जगह मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि उसके बाद आपको चाहिए B, हाँ आपके पास स्मॉल b चाहिए। अब कैपिटल B वाली कौन सी डेरिवेशन है इसकी जिससे आपका स्मॉल b आएगा। अगर आप ये डेरिवेशन यूज करते हैं तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लेट से मैं इसे रेज करती हूँ। अगर मैं इस b को सिर्फ b से रिप्लेस करवाऊं तो मेरे पास आ जाएगा a b और कैपिटल B, लेकिन मेरे पास तो बड़ी लंबी स्ट्रिंग पड़ी है अभी मेरे पास स्ट्रिंग ज्यादा है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रिप्लेस इससे नहीं करवाती बल्कि मैं इसको BS से रिप्लेस करवाती हूँ ताकि S से मैं बाकी स्ट्रिंग्स भी लिख सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इस B को BS से रिप्लेस करवाया, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ लिख ली। अब उसके बाद S जो है उसको, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे देखें मेरे पास अभी मेरे पास डबल A B तो है ना, डबल A B तो है, अगला मुझे B चाहिए, B चाहिए। इस F को मैं किससे रिप्लेस करवाऊंगी, इससे रिप्लेस करवाऊंगी ताकि मेरे पास क्या आए, B आए। तो यहाँ पे मैंने इसे BA से रिप्लेस करवा दिया, इस S को BA से रिप्लेस करवा दिया और इस B को एज इट इज लिखा रहने दिया। अब हमारे पास जब मैंने इसे इससे रिप्लेस करवा दिया, अब A की मेरे पास काफ़ी रिप्लेसमेंट्स हैं। मेरे पास ये डबल A डबल B तो बन गया, ये देखें डबल A डबल B तो बन गया। उसके बाद मुझे चाहिए A, तो अब मैं इस A को किससे रिप्लेस कराऊं, मेरे पास ऑप्शंस तो 3 हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए, पहले वाला ऑप्शन चाहिए। तो मैंने इसे A से रिप्लेस करवा दिया और B को एज इट इज लिखा रहने दिया। अब हमारे पास ये देखें यहाँ तक ये बन गया, यहाँ तक, ठीक है। अब फिर मुझे B चाहिए तो मैं B को किससे रिप्लेस करवाऊंगी, BS से। तो ये मैंने इसे BS से रिप्लेस करवा दिया। अब एंड पे आप देखें BS से रिप्लेस करवा दिया तो मेरे पास एक B बन गया, फिर मुझे B चाहिए। तो अब ये रिप्लेसमेंट करवाते करवाते जो है हम इस एंड पे पहुंच जाएंगे। तो ये अब आपको आई होप के समझ आ गया होगा कि किस तरह मैंने किया है। A B मैं बार बार आपको बता के थक गई हूँ। जस्ट डू इट योरसेल्फ वंस अगेन, आपको इस सारी डेरिवेशन का पता चल जाएगा। अब आप इसी तरह अगर इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन करवाएंगे तो वो भी मेरा ख्याल है कि आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से इसकी ये राइट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो करवानी है, ठीक है।
तो काइंडली जस्ट हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स एंड डू इट योर सेल्फ, ताकि आप किसी भी तरह की एम्बिग्विटी से जो है वो बच सकें. एंड आई एम मेकिंग शॉर्टर वीडियोज़ दिस टाइम बिकॉज इट्स ईजियर टू अपलोड द शॉर्टर वीडियोज़, और वो टॉपिक वाइज हो जाती हैं, तो इट्स इवन मोर ईजियर कि आपको एक एक टॉपिक का पता चलता जाए. ठीक है, तो अब हम इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ डेरिवेशन ट्री.